हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में आपको हम गेहूं पत्थर पुल के बारे में समझाने जा रहे हैं. यस, व्हीट स्टोन ब्रिज. अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, if we connect four resistances P, Q, S and R along the four sides of a quadrilateral A, B, C, D, A, it is a quadrilateral. So along the side AB, resistance P is connected. Along the side BC, resistance Q is connected. Along the side CD, resistance S is connected, and along the side DA, resistance S is connected. Along one of its diagonal, galvanometer is connected whose resistance is Rg, and along the second diagonal, AC is the second diagonal, along this diagonal a cell or battery is connected along with a key. Then it is found that under balance condition means when no current flows through this galvanometer, the ratio of resistance of upper two arms, that is P upon Q, is equals to ratio of resistance of lower two arms, that is R upon S. It means when the galvanometer shows zero deflection, the current through the galvanometer is zero. Under that condition, the ratio of resistance of upper two arms, that is P upon Q, is equivalent to R upon S. This is the mathematical form of Wheatstone bridge principle, and to verify it, we use the KCL and KVL. Suppose I is the current supplied by the cell at point A. Let I1 current goes to branch AB. So remaining current, that is I minus I1, will flow through the branch AD, and when the current I1 reaches to point B, again let IG current flows through the middle branch BD, and remaining current, that is I1 minus IG current, flows through the resistance Q. Now come to this node point D. IG is the incoming current and I minus I1 is also incoming current. So outgoing current at point D will be I minus I1 plus IG. D से जो आउटगोइंग करंट होगा I माइनस I1 प्लस IG के इक्वलेंट होगा. अब इस C ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे देखिए, C नोड पॉइंट पे देखें. Two incoming currents are there. One is I1 minus IG and second is I minus I1 plus IG. तो ये प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो जा रहा है. तो C से जो यहाँ पे आउटगोइंग करंट जाएगा वापस, ये I करंट के इक्वल होगा. तो इस तरह से हमने KCL यूज़ करते हुए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया. अब इसमें लूप रूल यानी KVL को यूज़ करके हम लोग P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट लूप लेंगे A B D A, इसे हमने ऐसा क्लॉकवाइज लूप ले लिया. सो इन लूप 1 A B D A बाय KVL सिग्मा E प्लस सिग्मा IR इक्वल्स टू 0, यानी इस लूप में जितने भी EMF सोर्स है उनका सम और जितने पोटेंशियल ड्रॉप है उनका सम 0 के इक्वल होगा. बट लूप A B D A में कोई EMF सोर्स नहीं है. जो EMF सोर्स है वो लूप के बाहर है, उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो केवल यहाँ पे हमें पोटेंशियल ड्रॉप शो करना है. तो एक ड्रॉप होगा I1 इंटू P, और हम A से B की तरफ जा रहे हैं और करंट भी A से B की तरफ जा रहा है, तो इसे लिखा है माइनस I1P. फिर हम B टू D आ रहे हैं, करंट भी B टू D फ्लो हो रहा है, तो ये भी ड्रॉप जो आएगा IG RG, ये भी नेगेटिव साइन के होगा साथ होगा, तो इसे लिखा जा रहा है माइनस IG RG. फिर हम D से A की तरफ जा रहे हैं, बट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू D, सो दिस ड्रॉप विल हैव पॉजिटिव साइन, तो इसे लिखा गया है I minus I1 into R equals to 0.
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन 1 बन रहा है I माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू आई वन पी प्लस आई जी आर जी। जो नेगेटिव वाले टर्म से उसे RHS में शिफ्ट किया। Similarly, KVL is applied in the second loop B, C, D, B, and by using the KVL, the first drop is negative because we travel in the direction of current. Second drop is positive because there we travel in the opposite direction of current, and third drop is also positive because there also we travel in the opposite direction of current. सेकेंड लूप इज बी सी डी बी। तो इसमें ये जो पहला ड्रॉप आएगा ये हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम बी टू सी, तो दिस ड्रॉप दैट इज आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। बट द सेकेंड ड्रॉप वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू डी एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डी टू सी, दिस ड्रॉप विल हैव पॉजिटिव साइन, and then we traverse from D to B and current is flowing from B to D. So third drop that is IG RG will have positive sign. After rearranging it can be written as I minus I1 plus IG into S plus IG RG equals to I1 minus IG into Q. It is equation 2. Under balance condition the current through the galvanometer that is IG is 0. बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं होगा तो आई जी का वैल्यू 0 कर दें। तो इक्वेशन 1 में जब हम आई जी का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाता है आई माइनस आई वन इक्वल्स टू आई वन इंटू पी। और इक्वेशन 2 में यहाँ पे जब हम आई जी का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो एक इस जगह पे आई जी का वैल्यू 0 हो रहा है, एक इस जगह पे आई जी का वैल्यू 0 हो रहा है। सो इक्वेशन रिड्यूसेस एज आई माइनस आई वन मल्टीप्लाइड बाई एस इक्वल्स टू I1 into Q. Now we have equation number 3 and equation number 4. If we divide equation 3 with equation 4, this I1 get cancelled. Here I minus I1 get cancelled. तो right side में आ रहा P upon Q and left side में आ रहा R upon S. This is the mathematical form of Kirchhoff's law. This question is based on Wheatstone principle, in which we have to find this unknown resistance X. According to question, the current through the galvanometer is 0, that is it is in balance condition, and hence it will follow the Wheatstone principle, according to which the ratio of P upon Q is equals to R upon S. इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम P, Q और R के वैल्यूज़ डायरेक्टली आपको दिए हैं तो आप ये S का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और S का वैल्यू एक्चुअल में X और 1.2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। तो पहले हम S का वैल्यू निकालेंगे और उसे इक्वेट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड 1.2 से, तो हमें X का वैल्यू मिल जाता है। सिंस P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, तो P इज 12, Q इज 6, तो 12 अपॉन 6 इक्वल्स टू R अपॉन S। R इज 8 एंड S इज अननोन। इसको सॉल्व किया तो S का वैल्यू 4 ओम आया एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड X ओम इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ S दैट इज 4 ओम। सो 1 अपॉन S इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 is 12, R2 we have to calculate and S is given as 1 by 4. When we simplify it, this X comes as 6 ohm. So the unknown resistance is of 6 ohm. Consider one more example in which we have to find the equivalent resistance between A and C. In this diagram, between A and C, we have to calculate the equivalent resistance. This circuit, this network can be compared with Wheatstone principle. यहाँ पे हमने B और D और मार्क कर लिए, तो अब आप इसे Wheatstone से कंपेयर करें। Wheatstone में A और B के बीच में P कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए A और B के बीच में 5 ओम है, यानी इस 5 ओम को हम P के इक्विवेलेंट लेंगे। P इक्वल्स टू 5 ओम। फिर देखिए
B और C के बीच में Q कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये B पॉइंट है और ये जाके ऐसा C से कनेक्ट है। तो ये जो B to C है 7.5 ओम है, यानी कि Q का वैल्यू 7.5 ओम है। ये लास्ट में लिखा Q इक्वल्स टू 7.5 ओम। इसी तरह A और D के बीच में R कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए A, ये पॉइंट भी A कहलाएगा और ये पॉइंट D है। तो A और D के बीच में ये 4 ओम कनेक्ट है। R का वैल्यू 4 ओम लिया गया है। बिटवीन B एंड D RG होता है। ये B और D के बीच में RG यानी 20 ओम RG का रोल प्ले कर रहे हैं। बिटवीन C एंड D, ये C और D के बीच में S होता है। तो बिटवीन C एंड D 6 ओम। तो S का वैल्यू यहाँ पे 6 ओम लिया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन मीन्स नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। इस गैल्वेनोमीटर के यानी BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। BD ब्रांच में करंट फ्लो होने का मतलब नहीं है कि यहाँ पे B से D की तरफ कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और ये तब पॉसिबल है जब B और D सेम पोटेंशियल पे हो। करंट फ्लो का कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस। B और D अगर सेम पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और उस कंडीशन में हम इस मिडिल ब्रांच यानी BD को रिमूव कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये BD ब्रांच जब रिमूव कर दी जाती है तो ये 20 ओम हट जाता है। तो यहाँ से एक पाथ आता है जो करंट फ्लो होगा, ये जाएगा 5 ओम में, उसके बाद 7.5 ओम में सेम करंट, क्योंकि ये मिडिल ब्रांच हट गई। इसी तरह करंट का जो सेकेंड पार्ट है वो ये 4 ओम में जाएगा और फिर उसके बाद 6 ओम में। इसका मतलब है 4 ओम और 6 ओम सीरीज में आ गए। एंड ये नीचे डायग्राम में देखिए 4 ओम 6 ओम ये सीरीज में आ गए, 5 ओम और 7.5 ओम भी सीरीज में आ गए, और इनका जो इक्विवेलेंट है वो आपस में पैरेलल होगा। तो 4 और 6 का सीरीज 10 हो गया, 5 और 7.5 का इक्विवेलेंट 12.5 हो गया, और ये आपस में पैरेलल वे में है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम यहाँ पे 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 से। तो 1/10 प्लस 1/12.5, इसको सॉल्व किया तो R का वैल्यू जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 50/9 आया। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 50/9 और 5.55 ओम।